1 out of 4 heart attack is a young adult, means less than 40 years. मैं तो बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो जब हॉस्पिटल पहुँचते हैं उनको वहाँ पे जाके समझ में आता है कि उनकी 80% ब्लॉकेज थी. जो हमारे प्लाक होते हैं हार्ट की आर्टरीज के अंदर, जो प्लाक डिपॉजिट हो जाते हैं, कैल्सिफाइड हो जाते हैं. मतलब इतना कोलेस्ट्रॉल जम जाता है कि वो इतनी थिक लेयर कैल्शियम जैसे दिखने लगती है. तो आजकल तो बहुत कॉमन है कि लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है और कोई इसको सीरियसली नहीं लेता है. कोलेस्ट्रॉल केवल एक उसका कैरेक्टर है, ठीक है. इट इज़ अ मल्टी फैक्टर. व्हाट इज योर स्टांस ऑन कुकिंग ऑयल? कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स आर ऑलवेज बेटर देन दी रिफाइंड ऑयल्स. अगर हम स्मोकिंग की स्पेसिफिकली बात करें या फिर ड्रिंकिंग की, ये कैसे डायरेक्टली हार्ट को डैमेज करती है या कैसे इफेक्ट होता है इनके ऊपर? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज डाइट. डाइटरी डिसिप्लिन नहीं है लोगों के. जंक फूड एक डिफ़ॉल्ट डिनर बन गया है यंगर जनरेशन के लिए. स्लीप हाइजीन बहुत पुअर हो चुकी है. स्क्रीन टाइम इतना बढ़ा के आधा घंटा एक घंटा पहले सोने से पहले स्क्रीन टाइम होता है. What are the top 3 reasons for their cardiac issues? Hello and welcome to another episode of the Namya podcast. Today we have a very special guest called Dr. Naveen Bhamri. He comes with an experience of 25 years. He's director of cardiology at Max Hospital, Shalimar, New Delhi. Coming to his experience, he's done over 23,000 angiographies, about 8,000 angioplasticities and about 600 plus device implants. With that kind of experience, the podcast that we're going to do today is going to be a very, very special podcast. We talk a lot about why heart attack is coming in such young people. We see reels, we see so many communication today on social media where people are falling off. There are literally cardiac arrests happening every minute. I was reading the statistics and it's about 35 lakh people in our country who are dying because of heart attack. और अगर 35 लाख लोग हर साल हमारे देश में सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से मर रहे हैं तो ज़रूर हमें इस बारे में बात करनी चाहिए. We cover a lot about what are the tests that you can do to figure out how much blockage that there is in your heart. We talk a lot about क्या lifestyle होना चाहिए, कितनी movement होनी चाहिए body की, क्या क्या scans available हैं आज. We talk a lot about what foods to have, what oil to have, and we go into the detail of stenting कैसे होती है, what happens when there is a heart transplant. It is a podcast that everybody should watch because it is such a common problem in our country, and do share it with your family, friends and anybody who you care. Thank you so much, Dr. Bhamri, for joining us. I think it's a pleasure that we could have you on the podcast. I was reading some stats that said that about 35 lakh people in our country die every year because of heart attacks. And in every 30 seconds, there is a case where somebody passes away because of a heart problem. Now that we are seeing so many videos where people in the gym are falling off, there are so many young people that I know personally between the age 30 and 40 who've passed away in the last 4 years. ऐसा क्या हो रहा है हमारी कंट्री में कि इतने यंग लोग हार्ट अटैक की वजह से मर रहे हैं? एक तो पहली बात, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है. और स्टैटिस्टिक्स डेफिनेटली बहुत वरीसम है. इफ़ यू सी द स्टैटिस्टिक्स, 1 out of 4 heart attack is a young adult, means less than 40 years. Why so? There are so many factors. If I say the societal factors, the most important according to me is स्ट्रेस भी स्ट्रेस का ओवरलोड. चाहे वो पीयर प्रेशर हो, चाहे वो टारगेट्स अचीवमेंट करने का हो, या वो अर्बन हसल हो. सेकेंडली सीडेंट्री लाइफस्टाइल. सारा दिन लोग 12-14 घंटे बैठे रहते हैं. लॉन्ग स्क्रीनिंग टाइम, नो फिजिकल एक्टिविटी. दैट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. थर्डली, अगर हम सोसाइटल फैक्टर की बात करेंगे तो अवेलेबिलिटी ऑफ द अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड. जो है जंक फूड एक डिफ़ॉल्ट डिनर बन गया है यंगर जनरेशन के लिए. स्लीप हाइजीन बहुत पुअर हो चुकी है. 5 से 6 घंटे सोते हैं, वो भी स्क्रीन टाइम इतना बढ़ा के आधा घंटा एक घंटा पहले सोने से पहले स्क्रीन टाइम होता है. एंड लास्टली सोसाइटल फैक्टर के अंदर हम बात करेंगे तो निकोटीन एंड बिंज ड्रिंकिंग.
इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक एटम बम की तरह होता है हार्ट के लिए। अच्छा। मेडिकल फैक्टर्स की बात करेंगे तो अनडायग्नोज्ड हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़, दे आर साइलेंट किलर्स बेसिकली, क्योंकि लोगों को जब तक उसका नंबर ही नहीं पता होगा तो डायग्नोज ही नहीं होते। और यंग जनरेशन सोचती है कि क्या करना है इसको, नंबर्स को जान के क्या करेंगे, हम तो ठीक हैं। तो एक अनडायग्नोज्ड। सेकंड, हम इंडियन एथनिक ओरिजिन के लोग हैं, हमारे अंदर एक जेनेटिक रिस्क फैक्टर है, दैट इज़ लाइपोप्रोटीन लिटिल ए, LPA। क्या चीज़ है ये एक कोलेस्ट्रॉल का ही एक पार्ट है, LDL कोलेस्ट्रॉल का ही एक पार्ट है, जो लाइपोप्रोटीन लिटिल एक मार्कर है विच इज़ एक्सट्रीमली एथ्रोजेनिक मार्कर। अगर ये प्रेजेंट है मोर देन 30, अगर आपकी ब्लड लेवल इसका आ रहा है तो इट इज़ एन एक्सट्रीमली एथ्रोजेनिक फॉर द इंडियन एथनिक ओरिजिन पीपल। थर्ड, फैमिली हिस्ट्री अगर स्ट्रांग है हमारी, तो हमारे अंदर यंगर जनरेशन के अंदर हार्ट अटैक होने की रिस्क या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होने की रिस्क डबल हो जाती है। तो स्क्रीनिंग हम करते नहीं हैं। और लास्टली, जो जिम यूज़र हैं आजकल, वो जो जिस तरह के सप्लीमेंट्स लेते हैं, मसल बूस्टर्स इंजेक्शन लेते हैं, उनके अंदर एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली हार्मफुल। सो मेरे हिसाब से ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे को अवेयरनेस लेकर आना इस चीज़ की कि ये सब चीज़ें जो फैक्टर्स हैं ये गड़बड़ हैं। अर्ली स्क्रीनिंग एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये 3 वेपन्स को यूज़ करना होगा अगर यंगर जनरेशन को बचाना है। तो क्या ऐसे टेस्ट हैं जो हम करवा सकते हैं? जैसे आप अर्ली स्क्रीनिंग की बात कर रहे थे, मैं तो बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो जब हॉस्पिटल पहुँचते हैं उनको वहाँ पे जाके समझ में आता है कि उनकी 80% ब्लॉकेज थी बट कभी डिटेक्ट नहीं हुई। तो क्या कर सकते हैं हम अर्ली स्क्रीनिंग के लिए? अर्ली स्क्रीनिंग आइडियली हो जानी चाहिए एट द एज ऑफ 30 ईयर। 30 साल की एज में अर्ली स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए, और जिसके अंदर बहुत फ्यू टेस्ट मैं बताऊंगा, जैसे कि आपका लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल के अंदर मस्ट इंक्लूड लाइपोप्रोटीन लिटिल ए, जिसकी मैं बात कर रहा था। सेकेंडली आपका ECG, आपका ब्लड शुगर, आपका ब्लड प्रेशर एंड एकोकार्डियोग्राफी। एट द एज ऑफ 30 ईयर ये टेस्ट आपको कराने चाहिए। अगर ये नॉर्मल आते हैं आपके टेस्ट, देन गेट इट डन आफ्टर 3 years और 2 years लेटर ऑन। बट इफ़ यू हैव ए स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, आपकी फैमिली के अंदर फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपके फादर को लेस देन 55 ईयर में हार्ट अटैक हुआ है, या आपकी मदर को लेस देन 65 ईयर की एज पे हार्ट अटैक हुआ है, देन यू आर एट वेरी हाई रिस्क। इफ़ यू हैव ए स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, गेट इट डन एज अर्ली एज पॉसिबल, मे बी एट द एज ऑफ 25 ईयर। So, but when you have a strong family history and if you are a smoker, then must include treadmill test and calcium scoring by CT angiography. Calcium scoring. Yeah. Okay, what is that supposed to be? अगर आप explain कर सकते हैं। So calcium scoring क्या होता है? जब हम CT स्कैन करते हैं जो है आर्टरीज का, तो जब जो हमारे प्लाक होते हैं हार्ट की आर्टरीज के अंदर, जो प्लाक डिपॉजिट हो जाते हैं, वो जो है कैल्सीफाइड हो जाते हैं। मतलब इतना कोलेस्ट्रॉल जम जाता है कि वो इतनी थिक लेयर कैल्शियम जैसे दिखने लगती है। अच्छा। उसकी हम स्कोरिंग करते हैं। आइडियली इट शुड बी 0। इफ़ इट इज़ बिटवीन 1 to 10, वेरी मिनिमल डिजीज़। इफ़ इट इज़ बिटवीन 10 to 99, इट इज़ अ माइल्ड डिजीज़। 100 to 399, मॉडरेट डिजीज़। मोर देन 400, सीवियर डिजीज़। तो कैल्शियम स्कोर अगर आपको पता है अपना, इट मीन्स प्लाक बिल्डअप होना शुरू हो चुका है आपकी आर्टरीज के अंदर, तो अर्ली डिटेक्शन हो जाता है ये। तो ये सब टेस्ट हैं जो हमें कराने चाहिए अर्ली एज के अंदर, और स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो और अर्ली एज पे कराना चाहिए। जैसे आजकल जब आप इनिशियल फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे और लिपिड प्रोफाइल के बारे में बात कर रहे थे, तो आजकल तो बहुत कॉमन है कि लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है और कोई इसको सीरियसली नहीं लेता है। तो एट व्हाट स्टेज वुड यू सजेस्ट समबडी टू गो फॉर द अदर टेस्ट दैट यू आर सेइंग, लेट्स से कैल्शियम टेस्ट? ये कब करवाने चाहिए, किस लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल पे? देखो, लेवल कोलेस्ट्रॉल केवल हार्ट डिजीज इज़ अ मल्टी फैक्टोरियल डिजीज। कोलेस्ट्रॉल केवल एक उसका कैरेक्टर है, ठीक है, इट इज़ अ मल्टी फैक्टर। तो हमें बहुत सारी चीज़ें और भी देखनी पड़ती है। जस्ट ऑन द बेसिस की कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसके ऊपर हम नहीं करते। वी कैलकुलेट, देयर आर सर्टेन स्कोरिंग सिस्टम, जैसे ASCVD एक स्कोरिंग सिस्टम होता है एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए। उस स्कोरिंग सिस्टम के अंदर हम उसका हर पैरामीटर डालते हैं। पेशेंट का ब्लड प्रेशर कितना है, पेशेंट का फास्टिंग ब्लड शुगर कितना है, पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल जिसके अंदर LDL कोलेस्ट्रॉल जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल जिसे HDL
बोलते हैं, वो डालते हैं, पेशेंट की एज डालते हैं। ये फैक्टर्स डालने के बाद वी कैलकुलेट दैट स्कोर। इफ स्कोर इज मोर देन सर्टेन लेवल, देन वी सेड यार स्टार्ट सम मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अलॉन्ग विद द ड्रग्स। अब यू नो देयर आर सर्टेन ड्रग्स टू रिड्यूस योर कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो वो हमें एक लेवल स्कोरिंग से ही होते हैं। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ लिपिड प्रोफाइल यू कैन नॉट से। अगर लिपिड प्रोफाइल में डिरेंज लिपिड है, हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो हमें करना ही करना है इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, डाइटरी मॉडिफिकेशन, नो स्मोकिंग, लिमिट ऑफ अल्कोहल, नो रेड मीट। दिस इज व्हाट वी ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम द अर्ली एज, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिलता है। अगर हम स्मोकिंग की स्पेसिफिकली बात करें या फिर ड्रिंकिंग की, ये कैसे डायरेक्टली हार्ट को डैमेज करती हैं या कैसे इफेक्ट होता है इनके ऊपर? इन दोनों के अंदर द पॉइजनस जो है वो स्मोकिंग है। स्मोकिंग इज़ अ पॉइजन फॉर योर हार्ट। क्या होता है कि जब आप स्मोक करते हो तो ऑक्सीडेटिव जो है ना प्रोसेस, जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है। जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो आपकी आर्टरीज के अंदर वो डिपॉजिट होने लगता है, और निकोटीन जो है उसको एक्सेलरेट करता है उस प्रोसेस को। प्लस निकोटीन वाजो कंस्ट्रक्शन करता है, आपकी वेसल्स को सिकुड़ जाती है ना जैसे वेसल्स आपकी, तो वो वाजो कंस्ट्रक्शन करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज करता है, वाजो कंस्ट्रक्शन करता है, दिल की धड़कन को बढ़ाता है, अरिथमियास करता है, बहुत ज़्यादा टैकीकार्डिया होने लगता है लोगों को। तो ऑल दीज फैक्टर्स आर लीड टू अर्ली एथेरोस्क्लेरोसिस, अर्ली हार्ट अटैक्स। गॉट इट। और अभी जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं उसमें से टॉप 3 रीजंस आपने क्या देखे अपने एक्सपीरियंस में? व्हाट आर द टॉप 3 रीजंस फॉर देयर कार्डियक इश्यूज? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज डाइट। डाइटरी डिसिप्लिन नहीं है लोगों के अंदर। डाइटरी डिसिप्लिन, बिकॉज फूड इज मेडिसिन। अगर आपको डाइटरी डिसिप्लिन है, आप प्रोसेस्ड फूड कम से कम ले रहे हैं, पैक्ड फूड कम से कम ले रहे हैं, जंक फूड नहीं ले रहे, शुगरी ड्रिंक्स नहीं ले रहे हो, तो आप बहुत अपनी हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर सकते हो। सेकंड, फिजिकली इनएक्टिव हैं लोग, दे डोंट वांट टू डू एनी एक्सरसाइज। देयर आर लिमिटेड लोग जो एक्सरसाइज करते हैं। 80% लोग, 70 to 80% लोग, जब मैं उनको ओपीडी में बोलता हूँ वॉक करो, डॉक्टर साहब थकान हो रही है, कहाँ जाएं, गर्मी है, लॉट ऑफ उनके इतने बहाने हैं उनके पास कि वो नहीं जाते हैं। सो फिजिकल इनएक्टिविटी, डाइटरी डिसिप्लिन, एंड थर्ड स्ट्रेस एंड स्लीप डेप्रीवेशन। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा आजकल हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो चुका है कि हर लेवल पे स्ट्रेस है, चाहे वो काम का, चाहे वो स्कूल के लेवल पे, कॉलेज के लेवल पे, कंपटीशन है, और आप हॉस्पिटल में जाते हो या कहीं भी जाते हो, देयर इज़ peer pressure, that is increasing your cortisol level, that leads to increased blood pressure. डरा रहे हो। I want to quickly jump to heart attacks and cardiac arrest. In most cases, what are the factors leading to both, and maybe we can answer individually for both. पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हार्ट अटैक और कार्डिक अरेस्ट दोनों ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, बट दोनों अलग अलग हैं जी। काफ़ी लोग इसको मिक्स कर देते हैं कि मेरे को हार्ट अटैक वाला बोलता है कार्डिक अरेस्ट हो गया, कार्डिक अरेस्ट। दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। हार्ट अटैक का मतलब होता है दिल का दौरा पड़ना, मतलब जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है आर्टरीज, वो सडनली ब्लॉक हो गई है। तो जब ब्लॉक होती है तो हार्ट की मसल को ऑक्सीजन नहीं मिलता है और वो क्रेव करती है। जब वो क्रेव करती है तो आपको चेस्ट पेन होता है, आपको ब्रेथलेसनेस होती है, आपको स्वेटिंग होती है। ये सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक के। पेशेंट लेकिन कॉन्शियस रहता है। जनरली पेशेंट का बीपी पल्स थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है, बट जनरली कॉन्शियस रहता है और वो हॉस्पिटल पहुंचने का टाइम मिलता है। लेकिन कार्डिक अरेस्ट होता है, मतलब हार्ट की पंप करने की कैपेसिटी, पंप करना बंद कर दिया, सडनली अरेस्ट हो गया वो। तो पेशेंट का पल्सलेस, बीपी लेस, नो पल्स रिकॉर्डेबल, नो बीपी रिकॉर्डेबल, पेशेंट सडनली अनकॉन्शियस हो जाता है। व्हाट इज द बेस्ट? जस्ट डू अ CPR. Act fast to save his life. So this is the difference between the heart attack and the cardiac arrest. And the most common cause of cardiac arrest is heart attack. And the most common reason of heart attack death is cardiac arrest. So they are, interplay है दोनों के बीच में, but दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। Since we are talking about cardiac heart attack, बहुत लोगों को साइलेंट हार्ट अटैक आता है, उनको शायद समझ में भी नहीं आता कि उनको हार्ट अटैक हो गया है। ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जिससे हम
गैस को हार्ट अटैक से डिफरेंशिएट करेंगे? बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इन दो चीज़ों ये में। गैस सिम्टम इंडिया में बहुत कॉमन है। डॉक्टर साहब मैनू गैस हो रही है, हाँ। मैनू चेस्ट पेन नहीं हो रहा है, मैनू गैस हो रही है। हाँ। ये सिम्टम्स आते हैं। अगर मैं बोलूँगा उनको डॉक्टर नहीं आपको हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं, नहीं डॉक्टर साहब मैनू डाइजीन दे दो, मैनू एसिडिटी की दवाई दे दो, मैं ठीक हो जाऊँगी। बिकॉज ये मिमिक करते हैं, यू नो द सिम्टम्स ऑफ गैस एंड हार्ट अटैक जनरली मिमिक्स। सो डोंट इग्नोर सच सिम्टम्स। वेन एवर यू आर फेसिंग सच सिम्टम्स रेगुलरली, देन मस्ट कंसल्ट ए कार्डियोलॉजिस्ट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिम्टम्स और ये जब भारीपन छाती में होना, डकार आना, बेल्चिंग होना इन एल्डरली फीमेल्स स्पेशली, ठीक है, ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं। और स्पेशली डायबिटिक एल्डरली फीमेल्स, इनके अंदर इस तरह के साइलेंट अटैक होते हैं, ठीक है, या फिर बहुत जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है काफ़ी लंबे टाइम से, उनके अंदर भी साइलेंट अटैक होते हैं और वो इग्नोर करते रहते हैं सिम्टम्स को, गैस समझ के इग्नोर करते रहते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप इन सिम्टम्स को अगर हो रहे हैं एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। उसको साइलेंट जो अटैक्स होते हैं इसी को बोला जाता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप चल फिर रहे हैं और तब आपको महसूस हो रही है छाती में दर्द, और अगर आप बैठ गए हैं तो फिर ठीक हो गया, तो शायद ये हार्ट अटैक का दिस इज कॉल्ड एंजाइना पेन। When you walk, I understand it technically. क्या difference है? Angina and heart attack are different. Okay. Angina means there is a supply and demand mismatch. Okay. आप चल रहे हो, आपके हार्ट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो रही है, बट आर्टरीज बंद हैं, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्रेव करता है। जब वो क्रेव करता है तो आपको जॉ में पेन होता है, छाती भारी हो जाती है, शोल्डर पेन होने लगता है, लेफ्ट आर्म पेन होने लगता है, आप बैठ जाते हो, उसको सप्लाई मिलती है, आपका दर्द ठीक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हार्ट रेट सेटल हुई, बैठे आपका, तो सप्लाई और डिमांड मिसमैच खत्म हो गया। दिस इज कॉल्ड एंजाइना पेन। हार्ट अटैक के अंदर सडन होता है, सडन अनईजीनेस, सडन चेस्ट पेन, क्रशिंग पेन, स्क्वीजिंग पेन। पेशेंट ऐसे बोलता है डॉक्टर साहब मेरी छाती पे हाथी बैठ गया है, ठीक है, दिस इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और हार्ट अटैक। सो एंजाइना अगर हो रहा है और उस समय आपने डॉक्टर को दिखा लिया, उसने एंजियोग्राफी करके उसको डिटेक्ट कर लिया और उसको ठीक कर दिया, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव कर जाती है, क्योंकि ब्लॉकेज है उसको खोलना है। मेथड क्या है? रीवास्कुलराइजेशन, बाईपास सर्जरी या स्टेंटिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑल्सो, बट इफ द ब्लॉकेज इज मोर देन 80-90%, देन द रीवास्कुलराइजेशन इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू improve the quality of life. If you can help us understand this terminology that you were mentioning, because to my understanding, most people who land up in a hospital already have 80% blockage, right? And I will probably divide the question in two parts कि पहले तो ये कैसे होता है अगर ऐसी ब्लॉकेज है, और ऐसा क्यों है कि 80% ब्लॉकेज पे ही लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और ये बहुत कॉमनली एनकाउंटर करते हैं हम लोग कि डॉक्टर साहब आपने एंजियोग्राफी करी और 80% ब्लॉकेज हो गया, मुझे तो पहले कोई सिम्टम ही नहीं थे। हाँ, और बहुत लोग डरते हैं हॉस्पिटल आने से इसी वजह से। हाँ, डरते। क्या होता है कि अप टू 70% ब्लॉकेजेस जब होती हैं हार्ट के अंदर, तो जनरली हम उसको बड़े इजीली टॉलरेट करते हैं, क्योंकि सप्लाई डिमांड मिसमैच होती है। हम जब दौड़ेंगे, स्टेयर्स को क्लाइम करेंगे, 2 और 3 फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, देन यू विल गेट टू नो कि मेरे को ब्रेथलेसनेस हो रही है, एंजाइना हो रहा है। लेकिन नॉर्मल एक्टिविटी के अंदर, इफ़ यू आर डूइंग ऑर्डिनरी एक्टिविटी, आप वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, सरफेस पे चल रहे हैं, आपको कोई सिम्टम नहीं आएंगे, ठीक है, तो पेशेंट को लगता ही नहीं है कोई सिम्टम है, ठीक है। बट अगर हम उसका ट्रेडमिल टेस्ट करेंगे, जब वो ट्रेडमिल करेगा, ब्रेथलेसनेस होगी, स्वेटिंग होगी, घबराहट होगी, चेस्ट पेन होगा, देन ही विल गेट टू नो कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। 70% के ऊपर जब ब्लॉकेजेस होने लगते हैं तब इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं, ठीक है। 70% से नीचे जनरली हार्ट के सिम्टम्स एग्रेवेट नहीं होते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी एक्टिविटी में इतना हार्ट को सप्लाई मिलती रहती है। तो जब हम एंजियोग्राफी करते हैं, जब प्लास्टिक करते हैं और हम बोलते हैं कि 80% ब्लॉकेज है, क्योंकि आप लैंड अप ही तब हुए हो जब आपको सिम्टम्स आने लगे, और सिम्टम्स तभी आते हैं जब मोर देन 70% ब्लॉक होने लगता है। और इसके लिए जो आप टेस्ट बता रहे थे, टेस्ट करना चाहिए सो दैट यू नो इट मच बिफोर। यस, टेस्ट पहले तो नॉन इन्वेजिव टेस्ट होते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट किया, एको किया, स्ट्रेस इको किया, एंड देन देयर आर न्यू मेथड्स। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे एंजियोग्राफी नहीं करानी, मैं इन्वेजिव मेथड नहीं कराऊंगा, देन वी सजेस्ट गो फॉर अ सीटी एंजियोग्राफी। सीटी एंजियोग्राफी इज अनदर न्यू मोडालिटी जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, बट हम उन्हीं को एडवाइस करते हैं जिनके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकेज जो है कम होती है,
कम होती है, क्योंकि अगर सीटी एंजियोग्राफी की नेगेटिव वैल्यू बहुत अच्छी है, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू इज ऑलमोस्ट 100%। अगर वो नॉर्मल है तो एब्सोल्युटली नॉर्मल है, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज है वो क्वांटिफाई बहुत अच्छे से नहीं कर पाता है, देन वी हैव टू डू गो फॉर ए इन्वेजिव एंजियोग्राफी। तो जहाँ डाउट है कि इसको निकलेगा हम उसके अंदर इन्वेजिव एंजियोग्राफी बोलते हैं, जहाँ डाउट है कि ये नॉर्मल निकलेगा, ठीक है, ये सिम्टम्स आर नॉट टिपिकल, देन वी सजेस्ट कि गो फॉर ए सीटी एंजियोग्राफी। इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं एंजियोग्राफी के? हाँ जी। एंजियोग्राफी जो होती है, एक तो सबसे पहला साइड इफेक्ट होता है कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं हम उसके अंदर, जो कॉन्ट्रास्ट जो डाई यूज़ करते हैं एंजियोग्राफी करने के लिए, हाँ जो हाँ, तो वो किडनी के लिए इज़ नॉट वेरी सेफ, ठीक है। तो किडनी फंक्शंस को वो हैम्पर कर सकती है, आने वाले टाइम पे वो किडनीज को ख़राब कर सकती है, बट किस क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हो और किस तरह का कंट्रास्ट यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर आप मिनिमम कंट्रास्ट यूज़ कर रहे हो, अच्छी आइसोस्मोलर डाइज यूज़ कर रहे हो, तो जनरली कम होता है। लेकिन जिनके किडनी के फंक्शंस ऑलरेडी डिरेंज हैं, थोड़े से भी डिरेंज हैं, उनके अंदर ज़्यादा रिस्क होता है। सीटी एंजियोग्राफी के अंदर कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा यूज़ होता है, ऑलमोस्ट 100 ml, और कन्वेंशनल एंजियोग्राफी में कॉन्ट्रास्ट कम यूज़ होता है। शायद तभी सीटी एंजियोग्राफी इतनी पॉपुलर नहीं हो रही है। एक रीज़न ये भी है, दूसरा उसके अंदर रेडिएशन बहुत होता है, पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन इज़ वेरी हार्मफुल। हम एक सीटी एंजियोग्राफी करते हैं तो ऑलमोस्ट 100 to 400 एक्सरेज के बराबर का रेडिएशन दे देते हैं, ठीक है। तो दिस इज सिमिलर टू सीटी स्कैन, आई थिंक। यस यस सिमिलर थिंग, यस। ऐसा भी है कि मेल्स और फीमेल्स में कुछ डिफरेंस है ऑफ हार्ट अटैक, या ऑलमोस्ट रेशियो सिमिलर है? हैव यू सीन अ पैटर्न? टिल द मीनोपॉज, जब तक मीनोपॉज नहीं होता, फीमेल्स आर लिटिल बिट प्रोटेक्टिव बिकॉज ऑफ द ईस्ट्रोजन हार्मोन। जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो प्रोटेक्शन देता है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा के रखता है, ठीक है। सो फीमेल्स आर लिटिल बिट प्रोटेक्टिव अंटिल द एज ऑफ 45 और 50 ईयर, जब तक मीनोपॉज नहीं आता। बट फीमेल्स जो स्मोक करती हैं, ठीक है, वो ये एडवांटेज को लूज कर देती हैं, ठीक है। तो इफ़ यू आर स्मोकिंग एंड ए यंग गर्ल, then the risk is almost equal or more than that, ठीक है। तो that is why younger females are getting heart attack because they start smoking, binge drinking। तो जब आप lifestyle को obesity is very common again, PCOD is very common in female, so अगर ये साथ में factors involve हो जाते हैं, then you lose that advantage of estrogen, ठीक है। तो in general females are protective, they are protective till the age of protected from the heart attack till the age of 50 year, but up to 50 year males को थोड़ा ज़्यादा होता है और females में कम होता है। After 50 year the ratio is same. Got it. I now want to come down to the technicality of angioplasty. कैसे होती है, क्या करा जाता है, stenting कैसे होती है? Since you are pioneer in it, might as well tell us. Angiography is just a test जिसके अंदर हम या तो रेडियल आर्टरी हाथ के थ्रू या ग्रॉइन में फीमोरल आर्टरी होती है, उसके थ्रू हम पंचर करके एक कैथेटर के थ्रू हार्ट के अंदर पहुंचते हैं, और वहाँ हार्ट की राइट साइड की आर्टरी और लेफ्ट साइड की 2 तरह की आर्टरीज होती हैं। हमारे हार्ट को जनरली 3 आर्टरी सप्लाई करती हैं, लेफ्ट में 2, राइट में 1। 37% लोगों के अंदर 4 आर्टरीज होती हैं, जिसे रेमस इंटरमीडियस बोलते हैं, उसके हम बारे में बात नहीं करेंगे। हम उसके अंदर एक कैथेटर को जाके उसके अंदर प्लेस करते हैं एओर्टा के अंदर, जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, उस आर्टरी के अंदर कैथेटर डाल के फिर पुश द डाई कॉन्ट्रास्ट डालते हैं और देखते हैं वो कॉन्ट्रास्ट किस स्पीड से जा रहा है, वो स्मूथली जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्या बीच में कोई हर्डल आ रहा है। अगर हर्डल आ रहा है दैट इज़ ब्लॉकेज। कितना परसेंटेज है उसको क्वान्टिफाई किया जाता है, पहले राइट में फिर लेफ्ट में, या पहले लेफ्ट में फिर राइट में। तो तीनों आर्टरीज के अंदर हम कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करके देखते हैं कि कितना परसेंटेज जा रहा है और किस स्पीड से जा रहा है। ये तो हो गई एंजियोग्राफी। अब एंजियोप्लास्टी मतलब उसका ट्रीटमेंट। एंजियोप्लास्टी करने के लिए अब उसी कैथेटर और एक कैथेटर डाल के उसमें से हम वायर डाल देते हैं। जिस आर्टरी में ब्लॉकेज है मोर देन 70-80% उसमें वायर डालेंगे। वायर के ऊपर हम एक बैलून लेके जाते हैं। अच्छा। और बैलून जहाँ ब्लॉकेज होती है उसको बैलून को इन्फ्लेट कर देते हैं। एक डिवाइस होती है इन्फ्लेशन डिवाइस से, उसको इन्फ्लेट करके उस ब्लॉकेज को तोड़ देते हैं, खोल देते हैं। फिर हम दोबारा चेक करते हैं कि कितनी खुल गई। ठीक है, अगर वो प्रॉपर खुल जाती है देन वी विल डिप्लॉय स्टेंट। स्टेंट क्या होता है, एक मैश होती है। स्टेंट बैलून के ऊपर होता है। अच्छा। बैलून के ऊपर माउंट होता है स्टेंट। वो स्टेंट को हम लेके जाते हैं,
कोबाल्ट क्रोमियम के होते हैं, मेडिकेटेड होते हैं जनरली। वो उस एरिया में जहाँ पे हमने बलूनिंग करी थी वहाँ पे साइज़ को मेजर करके उस साइज़ का स्टेंट ले जाके और यहाँ से फुलाते हैं बलून को, तो स्टेंट वहीं रह जाता है और बलून और वायर को हम बाहर निकाल के ले आते हैं। दिस इज़ कॉल्ड स्टेंट एंजियोप्लास्टी विद स्टेंटिंग। तो और फिर हम कॉन्ट्रास्ट डाल के देखते हैं कि एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथली। तो उसका फ्लो का मेजरमेंट होता है कि किस स्पीड पे फ्लो जा रहा है, TME 3, TME 2, TME 1। सो आइडियली वी हैव टू अचीव TME 3 फ्लो। गॉट इट। और बाईपास सर्जरी किस केस में करी जाती है? बाईपास सर्जरी जब तीनों आर्टरीज ब्लॉकेज होती हैं तब हम बाईपास सर्जरी करते हैं, या लेफ्ट मेन आर्टरी ब्लॉक होती है तब हम बाईपास सर्जरी करते हैं। लेकिन अगर किसी को हार्ट अटैक आया हुआ हो और तीनों आर्टरीज भी बंद हों तो हम पहले उस आर्टरी को खोलते हैं जिसकी में हार्ट अटैक आया हुआ हो, तब हम बाईपास नहीं करते हैं क्योंकि बाईपास में टाइम लगता है। ठीक है, तो हमारे सीनियर बोलते थे अगर बाईपास सर्जरी हो गई अच्छी हो गई तो पास, वरना बाय बाय। तो ऐसा नहीं है, तो बिकॉज आई एम इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, बट बाईपास सर्जरी जब तीनों आर्टरीज ब्लॉक होती हैं और सीवियरली ब्लॉक्ड होती हैं, ठीक है, उसके अंदर हम स्कोरिंग करते हैं कि इतनी स्कोर से ऊपर है तो बाईपास सर्जरी करनी चाहिए। बेसिकली आप किसी रास्ते से जा रहे हो, ट्रैफिक जैम है, तो आप एक बाईपास रास्ता लेते हो उसको करने के लिए, दिस इज बाईपास सर्जरी। अगर आपकी आर्टरी ऐसे ऊपर से आ रही है, बीच में ब्लॉक है, तो हम एक ग्राफ्ट लेंगे आपके यहाँ से और उस जो ब्लॉकेज है उसको बाईपास करके नीचे कनेक्ट कर देते हैं, एक नया रास्ता बना देते हैं। दैट इज अ बाईपास सर्जरी, दैट इज एन ओपन हार्ट सर्जरी बेसिकली। Got it, got it. Is it more riskier? Because that's what the common layman language people understand. Nowadays, no, nothing. इतने एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं आजकल, तो बीटिंग हार्ट सर्जरी होती है, नॉट एट ऑल। मतलब एक मिनिमल रिस्क तो रहता ही है, चाहे वो एंजियोप्लास्टी कराओ चाहे बाईपास कराओ। yes. And what is the success rate for both angioplasty and bypass? Almost more than 97%, 98% I can say. मतलब इतना अच्छा सक्सेस रेट है, बट आज भी जब भी कोई दिल की बीमारी होती है तो लोग उसको सबसे ज़्यादा शायद सीरियसली लेते हैं। हार्ट को सबसे ऊपर भगवान ने सबसे जगह दी है यहाँ पे, बिल्कुल, ठीक और एक ही है, दो नहीं है, और एक ही है। तो हार्ट अटैक तो जो है आपके बाकी सब ऑर्गन्स को आप जो है आप ट्रांसप्लांट करा लेते हो, हार्ट ट्रांसप्लांट भी होता है, बट अवेलेबिलिटी कहाँ है? अवेलेबिलिटी बहुत टफ भी है। हाँ, इट्स टफ एंड अवेलेबल। कौन अपना दिल, कोई जिंदा आदमी का दिल ले नहीं सकते और मरे हुए का दिल भी नहीं ले सकते। ठीक है, मरे हुए जिसको ब्रेन डेड है, हार्ट चल रहा है, वही दे सकता है। तो फॉर माई अंडरस्टैंडिंग किस केस में हार्ट ट्रांसप्लांट सजेस्ट किया जाता है? व्हाट इज दैट कंडीशन? हार्ट ट्रांसप्लांट हम करते हैं जब आपका हार्ट का फंक्शन बहुत कमज़ोर हो जाता है। इट्स अगर हम कहेंगे लेस देन 20%, अगर आपका हार्ट फंक्शन कर रहा है और आपको सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, आप बैठे बैठे ब्रेथलेस हो रहे हैं और आप सीधा नहीं लेट पा रहे हैं, आपको रात को लेटने में दिक्कत आ रही है, अगर आप सिम्टोमेटिक हो, हार्ट का फंक्शन बहुत कमज़ोर है और दूसरी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ जो अवेलेबल हैं हार्ट डिजीज़, इस तरह के हार्ट को ठीक करने के लिए, वो अब कामयाब नहीं हो रही हैं। पहले तो आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ दे रही थी बट अब नहीं दे पा रही हैं, एंड यू आर सो डिस्नेक, यू आर सो ब्रेथलेस दैट यू कैन नॉट गो अप टू द वॉशरूम। सो दिस इज व्हेन यू रीच एट दिस स्टेज, ठीक है, एंड नो थेरेपी इज वर्किंग, लाइक नो ड्रग्स आर वर्किंग, नो ICDs और CRTDs आर वर्किंग, देन द ऑल्टरनेटिव इज either go for the LVAD is a left ventricular assist device, आर्टिफिशियल हार्ट बोलते हैं, जो बहुत कॉस्टली होता है, जिसकी कॉस्ट अप टू 1 CR तक होती है। सो और यू कैन गो फॉर ए हार्ट ट्रांसप्लांट। ठीक है, एंड आई एम अज्यूमिंग कि पेस मेकर भी एक पॉइंट तक डल पाता होगा, उसके बियॉन्ड एग्जैक्टली इज वेयर बी। आई ऑल्सो वांटेड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ लोगों को हार्ट अटैक आता है पता ही नहीं लगता, तो विच इज़ अ साइलेंट हार्ट अटैक। तो टेक्निकली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ साइलेंट हार्ट अटैक एंड अ मेजर हार्ट अटैक, जो माइनर मेजर की बात करते हैं हम? टेक्निकली कोई डिफरेंस नहीं है, हार्ट अटैक तो हार्ट अटैक ही है। अच्छा, सिम्टम्स हो रहे हैं तो पेशेंट पहुंच जाता है और उसको समझ में आ जाता है कि मेरे को छाती में दर्द हो रहा है, ब्रेथलेसनेस हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, तो वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचेगा। साइलेंट हार्ट अटैक के अंदर जनरली पेन नहीं होता, ब्रेथलेसनेस होगी लेकिन वो भी लिमिटेड होगी।
बहुत एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं। घबराहट हो रही है, आप एल्डरली लेडी से पूछो डॉक्टर साहब मैनू घबराहट हो रही है, और कुछ नहीं है, मैनू घबराहट हो रही है। वो घबराहट कब की आती है? घबराहट हो रही है, मैनू कोई पीड़ नहीं हो रही, मैनू कोई छाती दर्द नहीं हो रहा है, मैनू घबराहट हो रही है। तो जो घबराहट एक सिम्टम है, वो एक बहुत एटिपिकल सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक इन एल्डरली फीमेल्स। सडन स्वेटिंग हो जाना, बिल्कुल ड्रेंच, बिल्कुल पेशेंट पूरा गीला हो रहा है, कोई उसको चेस्ट पेन नहीं हो रहा, कोई ब्रेथलेस नहीं हो रहा, बिल्कुल गीला हो पड़ा, सडन कोल्ड स्वेट्स, ये जो है साइलेंट हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं। जनरली एल्डरलीज में होते हैं, डायबिटिक्स में होते हैं, और हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के अंदर होते हैं, और एल्डरली फीमेल्स में सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो इसलिए उनको हम बोलते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब इनको छाती में तो दर्द हुआ नहीं, आप कह रहे हो 99% ब्लॉक है, दैट इज साइलेंट अटैक। साइलेंट हार्ट अटैक। लेट्स अज्यूम, जैसे मेरी तो एक्चुअली जेनेटिक्स में है हार्ट अटैक, ओके, बट मान लीजिए कि हम अच्छा डाइट फॉलो कर रहे हैं, इफ़ वी हैव अ गुड लाइफस्टाइल, डज द चांस ऑफ अ हार्ट अटैक डिक्रीज इन दोज केसेस, और व्हाट इज इट रियली लाइक? सो यू नो, हार्ट डिजीज़ एज अ मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़, बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बहुत लोग कहते हैं मैं तो यंग हूँ, पतला हूँ, मेरे को कोई ओबेसिटी नहीं है, मैं फिज़िकली बहुत एक्टिव हूँ, और मैं खाना भी कम, जंक फूड नहीं खाता, बट फिर भी हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? सो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, दैट इज़ जेनेटिक्स, जैसे आपने बताया कि आपकी जीन्स में है। इफ़ योर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हैज ए हार्ट अटैक एट एन अर्ली एज, यू आर प्रोन फॉर हार्ट अटैक एट एन अर्ली एज। ठीक है, ये डराने वाला नहीं है, बट ये एक जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसे डेटा है, देयर इज एन एविडेंस बिहाइंड इट। सो जेनेटिक्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप अपनी डिजीज़ को प्रोग्रेस होने से लाइफस्टाइल मेजर्स लेके उसको डिले कर सकते हो, और कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि लिपिड्स हैं, लिपिड्स को आपको कंट्रोल करके रखना है, अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को। अगर फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है, डोंट गो विद द लैब की रिपोर्ट्स, लैब की रिपोर्ट में नॉर्मल वैल्यू आ रही है तो मेरी नॉर्मल है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दिस। लैब की एक नॉर्मल वैल्यू आपके लिए, हर किसी के लिए वो नॉर्मल वैल्यू नहीं है। जिसको हार्ट डिजीज़ है, या जिसको फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है, जिसको अदर रिस्क फैक्टर्स हैं लाइक डायबिटीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर, उनके लिए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल एज लो एज पॉसिबल होना चाहिए। इवन हम कहते हैं आज की डेट में 40 होना चाहिए। अगर आप अपना एलडीएल को 40 तक ले आओगे, देन यू कैन से कि अब मैं प्रोटेक्टेड हूँ थोड़ा बहुत, अब मेरा प्रोटेक्शन स्टार्ट हो गया है। सो एज लो एज पॉसिबल, कीप योर बैड कोलेस्ट्रॉल एज लो एज पॉसिबल. I also wanted to discuss the congenial heart defect, which is also called the hole in the heart. And I also know a lot of small children who have it. तो जो छोटे बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं अगर आपके दिल में छेद है? कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स कॉमनली इनकाउंटर करते हैं हम लोग, जिसमें मोस्ट कॉमन होते हैं, दो तरह में डिवाइड करते हैं हम, ए साइनोटिक एंड साइनोटिक. ए साइनोटिक होते हैं जो नीले नहीं पड़ते हैं, साइनोसिस मतलब नीला पड़ जाना, ठीक है. लेफ़्ट टू राइट शंट मतलब लेफ़्ट हार्ट से राइट की तरफ ब्लड जा रहा है. ASD, VSD, PDA ये कॉमन शंट होते हैं, मतलब जो ऊपर के चैम्बर जो है हार्ट का, उनके बीच में जो पार्टीशन होता है, अगर उसमें छेद हो जाए उसको बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट. अगर दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो पार्टीशन है उसमें छेद हो जाए तो उसे बोलते हैं वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है. और दोनों आर्टरीज, मेजर आर्टरीज एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में हो जाए तो उसको बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरीज या PDA, ठीक है. ये लेफ़्ट टू राइट शंट होते हैं. इनके अंदर जनरली बचपन में कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं. जब बच्चा पैदा होता है तब उनको रिकरेंट जो है निमोनिया होते हैं शुरू में. अच्छा. हम कहते हैं बच्चे को बार बार निमोनिया हो रहा है, बार बार निमोनिया हो रहा है एक साल में, शुरू में. फिर वो ठीक होते चले जाते हैं और फिर कोई सिम्टम, जनरली एसिम्टोमेटिक रहते हैं वो, और सडनली आपने एको कराया तो पता लगा कि अरे इसमें तो छेद है. तो ये 30s, 40s और 50s तक फिर सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है. और सिम्टम्स फिर जनरली ऐसे आते हैं कि ब्रेथलेसनेस हो रही है, ये हो रही है. ये आई एम टॉकिंग अबाउट दी ए साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट्स. और इनको ट्रीट करना आजकल पॉसिबल है विदाउट सर्जरी ऑल्सो. हम एक डिवाइस छतरी लेते हैं और वेन से घुसते हैं और शंट को वहाँ पे छतरी डाल के उसका साइज़ मेजर करते हैं और उसको फुला देते हैं, तो ऐसे चिपक जाती है, एक इस तरफ एक इस तरफ और छेद बंद, ठीक है. ये विदाउट सर्जरी हो गया. अगर मेजर डिफेक्ट है बहुत बड़ा तो फिर सर्जिकली उसको सिलना पड़ता है या उसके अंदर ग्राफ्ट लगाना पड़ता है, पैच लगाना पड़ता है.
एक होती है साइनोटिक हार्ट डिजीज़। साइनोटिक हार्ट डिजीज़ इज़ वेरी डेंजरस, लाइफ थ्रेटनिंग। बच्चा रो रहा है, नीला पड़ गया, स्पेल्स आते हैं, बिल्कुल नीला पड़ जाता है उसको। दैट इज़ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट, एक बीमारी होती है जो बहुत कॉमन होती है और बहुत डेंजरस होती है। अर्ली सर्जरी नहीं कराई तो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर टोटल करेक्शन हमने बचपन में ही कर दिया है उसका, सर्जरी करा के एट एन अर्ली एज, देन सर्वाइवल इज़ गुड मोर देन 5 decades। एंड देयर आर सर्टेन डिजीज़ जो हम डिजीज़ ट्रीट कर लेते हैं बट सर्वाइवल 10-12 साल से ज़्यादा, 15 साल से ज़्यादा नहीं होता है। तो साइनोटिक जो नीले पड़ते हैं बच्चे, उनका जो है लॉन्ग टर्म लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। और लेकिन ए साइनोटिक वालों का अगर हमने डिजीज़ को ट्रीट कर दिया है सर्जिकली या नॉन सर्जिकली, तो उनका लाइफ स्पैन एज गुड एज नॉर्मल पॉपुलेशन होता है। एक केस है जिसमें मतलब somebody in my known, उनका हार्ट में होल था बट टिल द टाइम शी बिकेम 50-55 वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ। तो ऐसे केसेस में जब कॉम्प्लिकेशन बहुत ही लेटर स्टेज पे आती है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं और क्या सर्वाइवल रेट होता है? जब आपको लेट स्टेज में पता लगता है 50s के बाद कि आपके हार्ट में छेद है, तब तक क्या होता है कि हमारे जो राइट साइड के प्रेशर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि लेफ़्ट टू राइट शंट होते हैं, लेकिन जब वो बहुत दिनों तक एक ही तरफ शंट जा रहा होता है तो राइट साइड के हार्ट में प्रेशर कम होता है नॉर्मली इन जनरल पॉपुलेशन, लेफ़्ट में ज़्यादा होता है। ठीक है, जब लेफ़्ट से राइट में कंटेन हो जाता है तो राइट साइड का प्रेशर भी बढ़ने लगते हैं। फिर वो शंट जब यहाँ का प्रेशर 120 का है और यहाँ भी 120 का हो गया तो अब शंट कैसे होगा? ब्लड रुक गया। तो इधर का ब्लड अगर इसका 130 हो गया और इसका 120 हो गया तो राइट से लेफ्ट जाने लगता है, तो साइनोसिस होते हैं, नीलापन पड़ने लगता है, उसके प्रेशर्स बढ़ जाते हैं, उसके अंगूठे नीले होने, ये उंगलियां, नाखून आप देखोगे तो नीले होने पड़ते हैं। ये जैसे पैरट बीक होती है ना, पैरट बीक जैसे नाखून होने लगते हैं, क्लबिंग होने लगती है जिसको बोलते हैं। ऐसे के अंदर जब जिसे बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द राइट साइड, जब राइट साइड के प्रेशर्स बढ़ने लगते हैं ऐसे पेशेंट्स के अंदर, फिर हम सर्जरी नहीं कर पाते। देन देयर इज नो ऑप्शन, you have to survive with the symptoms only, because once right side pressures are more than the left side pressures, then there is no option of surgery or device closure. टिल द टाइम प्रेशर्स आर, लेफ्ट साइड के प्रेशर ज़्यादा हैं और राइट के कम है, तब तक सर्जिकल ऑप्शन अवेलेबल है। बट जहाँ राइट का प्रेशर बढ़ने लगे और लेफ्ट से ज़्यादा होने लगे, फिर सर्जिकल ऑप्शन नहीं है। देन फिर कुछ दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ दे के आप अपनी जितनी लाइफ निकाल सकते हो निकालते हो। लोग 70-70 साल तक निकाल जाते हैं। 70 ईयर अगर हम जनरल अच्छे से दवाइयाँ दे पाएँ तो आजकल 70 ईयर तक का सर्वाइवल है। इफ़ यू डायग्नोज एट 55 एंड यू कैन कंटिन्यू अप टू 60-70 That's also a great life Yes. span. I also wanted to discuss deep vein thrombosis. क्या होता है, क्या complications होती हैं? Deep vein thrombosis is a very commonly encountered these days. जनरली किनको होती है? जो फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं, लेटे रहते हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, पड़े रहते हैं, बिस्तर पे पड़े हैं 2-2 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन, या लॉन्ग ड्राइविंग करते हैं जो नॉन स्टॉप। आजकल ऑटोमेटिक कार है, बिल्कुल ठीक है, आपका राइट लेग काम करता है, लेफ्ट लेग इज अ डेड लेग, ठीक है ना, आप लेफ्ट लेग तो रखे रहते हो, तो वो इमोबाइल पड़ा है बहुत टाइम तक, ठीक है। आप 8 घंटे, लोग कहते हैं मैंने 8 घंटे में यहाँ से शिमला गाड़ी लगा दी, मैंने मनाली गाड़ी लगा दी 8 घंटे में नॉन स्टॉप। भाई वेन्स स्टेसिस हो गई, आपका जो है खून, जो गंदा खून है वो ऊपर ट्रैवल ही नहीं कर पा रहा, वो पड़ा हुआ है, बिल्कुल स्टेसिस हो जाती है, क्योंकि यहाँ से ट्रैवल ही नहीं कर पा रहा, वो बैठा हुआ है। तो वो जो लॉन्ग स्टेसिस जिसमें होती है, या हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट जिनकी सर्जरी हो जाती है, वो बेचारे पैर को मूवमेंट नहीं कर पाते, तो उनके अंदर डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाती है। प्रेगनेंसी के बाद लेडीज़ डिलीवरी के बाद बिस्तर पे पड़ी रहती हैं तो उनके अंदर डीप वेन थ्रोम्बोसिस होती है। तभी आजकल हम बोलते हैं कि अर्ली मोबिलिटी, सर्जरी हो चला दो। तो जहाँ पे आप इमोबाइल हो जाते हो, लॉन्ग सिटिंग होने लगती है, लॉन्ग स्टैंडिंग है अगर बहुत लंबे एक ही जगह पे खड़े हुए, या लॉन्ग ड्राइविंग है, या फिर कंजेनाइटली बाय बर्थ आपके अंदर कुछ फैक्टर्स हैं जो एब्सेंट हैं, ठीक है, जो खून को पतला करके रखते हैं, जैसे कि प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, कुछ फैक्टर्स होते हैं, अगर वो एब्सेंट हैं, उनकी डेफिशिएंसी है, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर डीप वेन थ्रोम्बोसिस होती है। सिम्टम क्या होते हैं? आपकी काफ के अंदर पेन होने लगता है, और आप जब आप उनको हाथ लगाओगे काफ को तो टेंडर होती है, वो
उसके अंदर दर्द होता है, फूल जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को हम बोलते हैं, डायग्नोस करते हैं कि इनके अंदर डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अब उसका सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्या है डीप वेन थ्रोम्बोसिस का, जो डीप वेन के अंदर क्लॉट बन गया और वो टूट के आपके हार्ट की तरफ चला गया तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म करता है, विच इज़ लाइफ थ्रेटनिंग, तो एज डेंजरस एज हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक के अंदर तो कोरोनरी आर्टरी मतलब ये पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, जो लंग को ऑक्सीजन देती है, जो लंग को ब्लड सप्लाई देती है, उस आर्टरी के अंदर जाके क्लॉट यहाँ से टूटेगा तो वहीं जाएगा और वहाँ जाके वो फंस जाता है, एंड इट इज़ एज डेंजरस एज हार्ट अटैक और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। बट अगर टाइमली आपने डायग्नोस कर लिया तो उसको ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है और दवाई देके वो ट्रीट हो जाता है। क्या यही कारण है कि बहुत सारे लोग जो लॉन्ग फ्लाइट्स ले रहे हैं उनमें काफ़ी हार्ट अटैक दिख रहा है आजकल? हाँ, तो लॉन्ग फ्लाइट्स, अगेन लॉन्ग फ्लाइट में क्या होता है, आप एक ही जगह सीट पे बैठे हो, आप मूव करते नहीं हो, आप डिहाइड्रेटेड होते हो, पानी मांगते नहीं हो, आप दबाते रहो पुश बटन, तो 10 बार दबाओगे तो एक बार आता है अटेंडेंट लेकर और वो देंगे इतना सा ग्लास। पहले बॉटल्स मिलती थी, अब छोटा सा एक कप आपको दे जाते हैं पानी का, वो पी लो जी। सो डिहाइड्रेशन अलॉन्ग विथ लॉन्ग सिटिंग दैट कंट्रीब्यूट्स टू, दैट लीड्स टू डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए लॉन्ग सिटिंग अवॉइड करनी है। सो लॉन्ग सिटिंग इज अ न्यू स्मोकिंग, ठीक है। जितना आप लॉन्ग सिट करते हो, इमोबाइल होते हो, तो मूवमेंट इज अ की, वेर एवर, बस जहाँ मौका मिले चलते जाओ चलते जाओ। जहाँ रुकोगे, स्टैंडिंग होगी, लॉन्ग स्टैंडिंग होगी, लॉन्ग सिटिंग होगी, लॉन्ग इमोबाइल, बेचारे एल्डरली पेशेंट जो बिस्तर पे पड़े रहते हैं, उनके अंदर डीवीटी बहुत कॉमन है, एंड इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। अगर आप, पता नहीं याद होगा कि नहीं, लॉन्ग बैक इन द ईयर 2018 देयर वाज एन आर्टिकल इन इंडियन एक्सप्रेस, मेरा आर्टिकल था, आर्टिकल क्या था, पेज 3 पे देयर वाज अ यंग गाय जिसकी शादी होने वाली थी 10 दिन बाद, एंड वो अपने दोस्तों के साथ जो है यहाँ से देहरादून गया, देहरादून के मसूरी। सो उसने नई मर्सिडीज़ ली थी और वो यहाँ से 4 दोस्तों के साथ मसूरी गया नॉन स्टॉप, वहाँ पे उन्होंने बिंज ड्रिंकिंग करी और फिर नॉन स्टॉप वापस, तो कॉन्टिन्यूस ड्राइविंग एंड लैंड अप इन एमरजेंसी। बीपी रिकॉर्डेबल नहीं था, पल्स रिकॉर्डेबल नहीं थी, तो वो, और उसने पहनी हुई थी बिल्कुल टाइट जीन्स, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल जैसे मतलब एयर भी नहीं जा पाए, इतनी टाइट जीन्स पहन के वो बैठ गया। तो दैट एक्ट एज अ टॉर्निक्यू, इतनी टाइट, क्योंकि आपका वीनस ब्लड जा नहीं रहा, आपने बेल्ट बांधा हुआ है, ऊपर से लॉन्ग सिटिंग हो रही है। तो वो न्यूज़ वो बहुत मीडिया में चला था मेरा ये कि क्या टाइट जीन्स जानलेवा हो सकती है। तो यस, इन सच कंडीशंस यू आर ड्राइविंग ऑटोमेटिक कार, जहाँ पे आप इमोबाइल हो गया है आपका लेफ्ट लेग, और आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हो, तो वीनस रिटर्न हो नहीं पा रहा है, दैट वीनस वो ब्लड क्लॉट हो गया, एंड दैट लीड टू डीप वेन थ्रोम्बोसिस, एंड वो क्लॉट टूट के ऊपर गया, एंड हार्ट एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। How significant or how important is that 10,000 step that everybody is going gaga about? मेरे घर में भी होता है ये। माय किड्स आर सेइंग पापा 10,000 स्टेप हो गए। मैं हमेशा पूछता हूँ 10,000 स्टेप्स बहुत अच्छा है, मूवमेंट इज़ अ की, डेफिनेटली मूवमेंट जितना मूव करोगे उतना अच्छा है, एटलीस्ट जो नहीं कर रहे हैं उससे तो अच्छा ही है। बट जब आप वॉक करते हो ना, यू मस्ट डू अ ब्रिस्क वॉकिंग, तभी उसका एडवांटेज है। इफ़ यू आर नॉट डूइंग अ ब्रिस्क वॉकिंग, यू आर नॉट डूइंग गुड फॉर योर हार्ट। इट्स मूवमेंट फॉर एवरी ऑर्गन इज गुड, बट आइडियली इट शुड बी ब्रिस्क वॉकिंग। जब आप वॉक करते हो, टेक ए टॉक टेस्ट, डू अ टॉक टेस्ट कि आप, मेरा नाम नवीन भामरी है, ये आप नॉर्मल बोल रहे हो, लेकिन जब आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हो, मेरा नाम नवीन भामरी है, ऐसे अगर ये निकल रहा है तो यू आर डूइंग अ ब्रिस्क वॉकिंग, ठीक है। और फिर एक, और देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स और टेस्ट, जैसे कि 220 माइनस योर एज। अगर 220 में सपोज मेरी एज 50 साल है, मैंने माइनस कर दी तो 170 हो गया। अब 170 का 85%, तो कितना हुआ, उसको 170 का 85% कैलकुलेट करो तो 34 माइनस कर दिया इसमें से, नहीं 34 नहीं, आई थिंक अबाउट 160, हाँ 160 के आसपास आ जाएगा। सो 60 to 80% ऑफ दैट, मतलब 140 to 160 के बीच में अगर मेरी हार्ट रेट है जब मैं वॉक कर रहा हूँ, दैट इज़ द आइडियल हार्ट रेट, जिस पे मेरे को जो है मेरा फैट डिपॉजिट नहीं होगा, मेरे हार्ट की हेल्थ इंप्रूव होगी, ठीक है। और इसको हमें अचीव करते रहना है। 120 पे जाओ, फिर 140 पे, दैट इज कॉल्ड HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जैसे बोलते हैं, कि आप दौड़ो रुको, दौड़ो रुको। सो यू हैव टू रीच
एरोबिक थ्रेशोल्ड, एनारोबिक थ्रेशोल्ड, इस चीज़ पे ये ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम जिम वगैरह के लिए लोगों के लिए। बट नॉर्मली आप जस्ट डू अ ब्रिस्क वॉक, 10,000 स्टेप्स, गुड पैरामीटर। वो तो एक कंपनी ने निकाला था जिसकी वॉच नहीं चल रही थी, तब उसने निकाला, एंड पीपल आर फॉलोइंग इट, एंड आई एम हैप्पी दैट पीपल आर फॉलोइंग इट। राइट। टॉकिंग अबाउट हार्ट हेल्थ, बहुत सारे ऐसे तेल हैं हमारी मार्केट में जो हार्ट के लिए एडवर्टाइज़ करते हैं कि अच्छा है हार्ट के लिए, बुरा है हार्ट के लिए। अच्छा ही करते हैं वैसे तो। सोयाबीन ऑयल, बहुत सारे ऑयल्स की आजकल काफ़ी डिबेट हो रही है। आई थिंक मोदी जी भी बहुत बात कर रहे हैं कि तेल कम खाइए। व्हाट इज़ योर स्टांस ऑन कुकिंग ऑयल? कैसा कुकिंग ऑयल एक अच्छा कुकिंग ऑयल है हमारे किचन के लिए? जब हम ऑयल के सिलेक्शन की बात करते हैं और हार्ट हेल्थ के लिए रिलेटेड होता है, तो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। नंबर 1, उसका एक्सट्रैक्शन मेथड क्या है। क्या वो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, क्या वो रिफाइंड उसको हीट कर करके बनाया गया है। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स आर ऑलवेज मच बेटर देन दी रिफाइंड ऑयल्स। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, उसके अंदर उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट कितना है। बॉइलिंग पॉइंट से मतलब है किस टेम्परेचर पे उसके फैटी एसिड्स ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, जिस ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा अच्छा होता है, हायर होता है, दैट ऑयल इज़ गुड फॉर योर हार्ट। इसके अंदर नंबर 1 होता है देसी घी। देसी घी का बॉइलिंग टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। सरसों का तेल बहुत इंपॉर्टेंट, तो कोल्ड प्रेस्ड भी है और उसका बॉइलिंग टेम्परेचर भी अच्छा है। ठीक है, फिर आपके दूसरे ऑयल्स आते हैं, कनोला ऑयल्स आते हैं, राइस ब्रान ऑयल आते हैं। तीसरा, उसके अंदर एसेंशियल फैटी एसिड्स का रेशो कितना है, ओमेगा 6 ओमेगा 3 का रेशो कैसा है, क्योंकि जनरली आप ये रेशो डिस्टर्ब हो गया तो वो हार्मफुल भी बन सकता है। चौथा, उसके अंदर वाइटामिन कंटेंट कैसे हैं, A, D, E के फैट सॉल्युबल वाइटामिन जो होते हैं, अगर ये चारों प्रेजेंट हैं नहीं हैं। ठीक है, सो मैं हमेशा बोलता हूँ रीड द लेबल केयरफुली ऑलवेज वेन एवर यू गो फॉर टू बाय ऑयल, रीड द लेबल। उसके अंदर ट्रांस फैट्स हैं कि नहीं, मूफा कितना है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और लास्टली उसका प्राइस, उसकी अडर, ये मैटर करता है। तो 5 चीज़ें हमेशा याद रखनी होती हैं जब आप ऑयल के बारे में डिस्कस करते हो। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का आइडियल रेशो क्या होता है एक अच्छे ऑयल में? देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ जो एटलीस्ट 3:1 या 3:2 ये रेशो तो होना ही चाहिए। बिकॉज हमारे ऑयल्स के अंदर ओमेगा 3 हमें बाहर से ही लेना है, और ओमेगा 6 दे आर एसेंशियल फैटी एसिड्स। एसेंशियल फैटी एसिड्स बॉडी में तो मिलेंगे नहीं, तो यू हैव टू टेक द सप्लीमेंट। तो ऐसा ऑयल लो जिसके अंदर इसका रेशो अच्छा हो। ओमेगा 3 हमें कहाँ से मिलेगा? वॉलनट से मिलता है, फ्लैक्स सीड से मिलता है, फैटी फिश से मिलता है, आलमंड्स में मिल सकता है। तो ये जो है इस तरह। अंडरस्टैंड। एंड जैसे मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ वो एक ही तेल यूज़ करते हैं, तो आइडियली एक दिन में कितना तेल यूज़ करें और कितने टाइप का तेल यूज़ करना चाहिए हमें? सो मैं एक प्रेजेंटेशन देता हूँ हमेशा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे, और उसमें मेरी एक स्लाइड होती है ये ऑयल के बारे में। तो ऑयल जो है, एक तो कितना लेना चाहिए, एक तो पहले तो क्वालिटी की बात हुई, जो जैसे मैंने बताया कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स आर ऑलवेज बेटर देन दी रिफाइंड ऑयल। नाम रिफाइंड है बट दे आर पॉइजनस ऑयल्स, आई कैन से। ठीक है, अब आपने पूछा कि कितना लेना चाहिए। आइडियल क्वांटिटी 2 टीस्पून तक आप ले सकते हो इफ़ यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम ए हार्ट डिजीज़ और नॉट सफरिंग फ्रॉम ए डिसलिपिडीमिया, मतलब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आपका हाई नहीं है, तो अप टू 2 टीस्पून ऑफ ऑयल यू कैन हैव, और 1 टीस्पून ऑफ देसी घी इन अ डे यू कैन कंज्यूम। ठीक है, बट इफ़ यू आर डूइंग अ रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, यू कैन गो अप टू 3 टीस्पून और 1.5 to 2 टीस्पून ऑफ देसी घी, ये आप ले सकते हैं। इतना। और जैसे ऑयल रोटेशन की काफ़ी बात हो रही है आजकल, तो आपके हिसाब से कितने टाइप्स ऑफ तेल हमें लेने चाहिए और कितना रोटेट करना चाहिए? मेरा कहना होता है कि आपकी किचन के अंदर 3 से 4 तरह के ऑयल होने चाहिए। फॉर एवरी मील यूज डिफरेंट ऑयल। मॉर्निंग में डिफरेंट, इवनिंग में डिफरेंट, आफ्टरनून में डिफरेंट और इवनिंग में डिफरेंट। रोटेट द ऑयल, आपको रोटेशन करना होता है। रीयूज से बचना है, रीहीटिंग से बचना है। हमारी दादी मामी क्या करती थी, वो क्या करती थी, एक तेल में पूड़ी तली, उसको कढ़ाई निकाल के बॉटल में डाल के रख दिया, फिर दूसरी बार तला, उसको डाला और उसमें नया ऑयल मिला दिया। सो मिक्सिंग ऑफ रीयूज्ड ऑयल इज
डेंजरस, पॉइजनस, ट्रांस फैट्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक अगर हम बाहर खाना खाएं तो शायद वो हर मील में ऐसा होता है। आपको बाहर के समोसे क्यों बहुत अच्छे लगते हैं सड़क के किनारे, ट्रांस फैट्स होते हैं ना, वही तलाव उसी तेल के अंदर आपको मिल रहा होता है। अंडरस्टैंड। मेरा एक सवाल है आपसे कि मान लीजिए मेरी 40 या 50% आर्टरीज ब्लॉक हो गई हैं हाइपोथेटिकली, क्या कोई तरीका है इसको रिवर्स करने का, और ये कब तक रिवर्स करा जा सकता है? एट व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज कैन आई से कि हाँ यहाँ से रिवर्स हो सकता है? देयर वाज अ वेरी गुड स्टडी बाय डॉक्टर डीन फ्रॉम अमेरिका, ही इज़ एन अमेरिकन साइंटिस्ट है, अमेरिकन। उसने एक स्टडी करी थी उन्होंने, डॉक्टर डीन ने, कि अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट लेते हो, प्लांट बेस्ड डाइट विथ no smoking, little fats and lot of lifestyle modification, you can reverse the early stage of coronary artery disease. Okay. Consume lot of fruits, vegetables, legumes, seeds, nuts. And no animal product you're saying? No animal, plant. ये स्टडी जो है प्लांट बेस्ड पे बेस्ड थी। अब हर इंसान के लिए हर डाइट एक वेपन नहीं हो सकता ना, कि हर every person, if you go to the Mediterranean area, Mediterranean, they love to eat the omnivorous foods, sea foods लेते हैं और eggs प्रेफर करते हैं, उनकी डाइट के लिए वो अच्छा है। बट लीन मीट ये सब भी कर सकते हैं। बट जो स्टडी, जो आपका क्वेश्चन है, क्या कैन वी रिवर्स? यस, वी कैन रिवर्स early stage of atherosclerosis by using the plant based diet, lifestyle modification, up to 50% of the but when the disease is progressive or aggressive है, advanced stage में आ गई है, then you cannot. Got it. ऐसे कोई 3 फूड्स जो आपको लगता है कि बिल्कुल ही नहीं खाने चाहिए अपनी हार्ट हेल्थ के लिए? रेड मीट, अब नॉन वेज की बात करूँगा मैं, रेड मीट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड, इससे बिल्कुल बचना है आजकल। जंक फूड एंड शुगरी ड्रिंक्स, ये 3 पॉइजन है, इन तीनों से बचना है। तो नो ज़ोमैटोज एंड स्विगीज बेसिकली। यस, अवेलेबिलिटी ऑफ द जंक फूड is one of the most common reason why younger population is getting heart attack. Absolutely. I 100% agree on that. I think it's a upcoming pandemic. It's on the tip actually. Yes. आपने क्लिक किया 5 मिनट में, ठीक है। अब तो इतनी ऐसी आ गई हैं ये वाली, यू ब्लिंक एंड एवरीथिंग इज देयर। एब्सोल्युटली। हम लोग बहुत प्राइड लेते हैं कि हम कम सोते हैं, 4 घंटे 5 घंटे, स्पेशली हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर्स के सर्कल्स होते हैं। हम हसल को बहुत ही एक प्राइमरी इमोशन है सबका, जिसमें हम बहुत प्राइड लेते हैं कि हम कम सोते हैं, हम ज़्यादा काम करते हैं। ये ऑन अ लॉन्ग टर्म किस तरह के इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं आपकी बॉडी को, स्पेशली फॉर योर हार्ट? देखो, स्लीप डेप्रिवेशन is one of the most important risk factor nowadays for the coronary artery disease or heart attacks in the younger population as well as in the elderly. लोग इसको प्राइड लेते हैं कि मैं 5 घंटे सोता हूँ, मैं 4 घंटे सोता हूँ। नो, इट्स नॉट गुड फॉर योर स्लीप हाइजीन, मस्ट मेंटेन अ स्लीप हाइजीन। जब आप कम सोते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन्स आपके जो है वो रिलीज होते हैं, जैसे कॉर्टिसोल जो आपके ब्लड शुगर को बढ़ाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। मेलाटोनिन हार्मोन जो स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन होता है वो कम होने लगता है। लॉन्ग टर्म में ये आपकी स्लीप फिर कम ही हो जाती है। तो जब इस तरह के कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने लगता है, स्लीप डेप्रीवेशन होने लगता है, स्ट्रेस ज़्यादा होने लगता है, सो यू आर डेफिनेटली, आपके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेशन कम होने लगता है जो आर्टरीज को खोल के रखता है। एंडोथीलियम जो इनर लेयर ऑफ दी हार्ट होती है वो डैमेज होने लगती है। सो और आपके जो है ना सर्काडियन रिदम, हर ऑर्गन की एक सर्काडियन रिदम होती है, वो जब आप डिस्टर्ब करोगे तो वो आपको हिट करेगी, वो आपको हिट करेगी। सो इट्स नॉट गुड, मेंटेन ए स्लीप हाइजीन। ये तो हमारे को सब अपने यंगर जनरेशन को जो जेनजी है और हमारी जनरेशन को भी ये बताना होगा कि मेंटेन ए स्लीप हाइजीन। इट्स नॉट गुड एट ऑल टू लेट नाइट जो है आप पार्टीज कर रहे हो, सो यू नो, नॉट गुड एट ऑल। अकॉर्डिंग टू यू हाउ मेनी आवर्स एंड व्हाट टाइम शुड वन स्लीप? 7 आवर्स मिनिमम। 7 घंटे आपको सोना ही सोना है। किसी दिन आप चल जाता है कि आपने 6 घंटे सोया या 5 घंटे, तो दैट्स ओके, नॉट, डोंट मेक इट अ हैबिट। 7 घंटे मिनिमम स्लीप आपकी होनी चाहिए। और
मेरे हिसाब से 10:30 के बाद या 10 बजे के बाद आपको स्क्रीन बंद कर देनी चाहिए और सो जाना चाहिए। नींद आए नहीं आए अपने आप आ जाएगी। एंड वेक अप अर्ली एज पॉसिबल। गॉट इट। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। बिल्कुल। हम लोग बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करते हैं जब हम हार्ट के बारे में बात करते हैं, बट एक साइलेंट फैक्टर है, इसका नाम है शुगर। उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ शुगर ऑन कार्डियक? अगर मुझसे एक चीज़ पूछोगे आपकी व्हाट इज़ पॉइजन फॉर योर बॉडी, आई कैन से शुगर। शुगर इज़ द मोस्ट डेंजरस आइटम अवेलेबल इन द अर्थ। आई कैन से इट्स सबसे ज़्यादा डेंजरस, बिकॉज शुगर वही कोलेस्ट्रॉल के लिए बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही स्पाइस के साथ सारे ऑर्गन को डैमेज करती है, एंडोथेलियल इंजरी करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, एवरीथिंग, ओबेसिटी। सो ये सब चीज़ें शुगर मेरे हिसाब से देयर शुड नॉट, शुगर होनी ही नहीं चाहिए। चाहे आप किसी भी शुगर के बाद, कोई लोग कहते हैं वाइट शुगर, ब्राउन शुगर, आई कैन से नो। ब्रेड्स के अंदर शुगर है, देयर आर सो मेनी एवरी हिडन आइटम, फॉर्मेट्स ऑफ बिस्किट्स, शुगर नाउ। आप बिस्किट्स ले लो, बिल्कुल, ठीक है, एवरी बिस्किट बेकरी आइटम हैज ए शुगर। आई नो सो मेनी पीपल जो बिना चीनी के चाय पीते हैं, साथ में बिस्किट, मैं नाम नहीं लूंगी ब्रांड का, उसका बिस्किट खा लेते हैं। वो सोचते हैं कि वो वाला जिस ब्रांड का आप बोल रहे हो मैं समझ 10 गया, ग्राम का एक बिस्किट में शायद वो शुगर होगा। हाँ, उसमें भी शुगर होती है, तो मैदा होता है, दैट्स नॉट गुड फॉर योर हार्ट। Yes. तो शुगर इज अ पॉइजन फॉर योर बॉडी। I also want to touch upon people who are maintaining their cholesterol with medicine. तो statins की मैं बात करूँगी। क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं statins के और किन लोगों को लेनी चाहिए? देखो, स्टैटिन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के हिसाब से इट इज़ अ ड्रग दैट कैन प्रिवेंट हार्ट अटैक्स। ठीक है, बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ लिया आपने, और हो सकता है कि जब ये पॉडकास्ट लोग सुने तो इस कंट्रोवर्सी के ऊपर बोलेंगे भी कि ये डॉक्टर हैं इसलिए बोल रहे हैं। बट जिस चीज़ का हमारे पास एविडेंस है हम उसी के बारे में बात कर सकते हैं। एंड वी हैव ए इनफ एविडेंस दैट स्टैटिन्स प्रोटेक्ट योर हार्ट, बिकॉज वो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इज द मेजर कल्प्रिट, इट इज़ वन ऑफ द मेजर विलियन फॉर हार्ट अटैक। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपके पास क्या है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या फिर आपके पास दवाइयाँ। दवाइयों के अंदर आपके द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्टैटिन्स। स्टैटिन्स लेने से कुछ लोगों को साइड इफेक्ट होते हैं, बट उसके गुड इफेक्ट्स को जब देखा जाए तो साइड इफेक्ट्स को इग्नोर करना होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट और मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पीपल एनकाउंटर विद स्टैटिन इज जो है वो होता है माइल्जियास, मसल पेन, फटीग, थोड़ा सा फटीग होता है। सम पीपल से मुझे कॉन्स्टिपेशन होता है। तो दीज आर दी माइनर सिम्टम्स, यू हैव टू इग्नोर इट सम टाइम। बट अगर किसी को बहुत ज़्यादा हो रहे हैं देन वी हैव टू स्टॉप इट एंड यूज़ ऑल्टरनेटिव ड्रग्स। देयर आर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल। आज के ज़माने में तो हमारे पास अब इंजेक्टेबल दवाइयाँ आ गई हैं। जो स्टैटिन नहीं खाना चाहता, एक इंजेक्शन लगाया, 6 महीने बाद दूसरा इंजेक्शन लगाया, योर कोलेस्ट्रॉल इज कंट्रोल्ड। ओके, ठीक है। एक बड़ी फेमस हो रही है किट, उसको बोल रहे हैं राम किट। आई डोंट नो आपने कहीं सुना है, मैंने सुना है। वो आई थिंक 10-20 रुपए की मिल रही है यूपी में। ओके। और उसके अंदर 3 गोलियाँ जो आपके हार्ट अटैक से आपको बचाती हैं। तो इसके बारे में मतलब आप कुछ बताना चाहेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें हैं या ऐसी क्या दवाई है, अगर मैं आज एट रिस्क ऑफ हार्ट अटैक हूँ तो मैं क्या दवाई अपने पास रख सकती हूँ सो दैट आई कैन प्रिवेंट और आई कैन सेव माई सेल्फ इफ एट ऑल एनी इमरजेंसी हैपन्स? मुझे नहीं पता राम किट में क्या है, बट नाम बड़ा कैची है और लोग उसको जो है आई मस्ट से कि उसके अंदर ज़रूर देखो 3 दवाइयाँ आपके घर में हमेशा होनी चाहिए। पहली डिस्प्रिन, च्यूएबल डिस्प्रिन 325 मिलीग्राम, 325 मिलीग्राम। दूसरी क्लोपिडोग्रिल, जैसे वो भी खून पतला करने की दवा, एंटीप्लेटलेट होती है। उसको जब हम हार्ट अटैक होता है तो उसको 300 मिलीग्राम की टैबलेट हमें वो भी च्यू करनी है। और तीसरा होता है स्टैटिन, हाई डोज 40 या 80 मिलीग्राम। ये 3 दवाइयाँ जो हैं हर किसी के घर में होनी चाहिए। सॉर्बिट्रेट एक दवाई होती है जो जीभ के नीचे रखी जाती है जब आपको एंजाइना पेन हो रहा होता है, बट वो तभी यूज़ करनी है जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है या 120 के ऊपर है, 130 के ऊपर है, तब उसको यूज़ करो। अदरवाइज ये राम किट में ये मोस्ट लाइकली 3 दवाइयाँ ही होंगी, क्योंकि यही रामबाण हैं, यही बचाते हैं। क्योंकि जब हार्ट अटैक का पेशेंट हॉस्पिटल आता है तो ये 3 दवाइयाँ उसको इमरजेंसी में दी जाती हैं और ये आपके घर में हमेशा रहनी चाहिए। Got it. And with this we have landed to a very interesting segment. It's called the myth and the fact segment. तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, आपको बस बताना है ये मिथ है या फैक्ट है, क्योंकि ये आप समझिए कि
टॉप गूगल्ड क्वेश्चंस हैं Okay. जो हमने फाइंड आउट करे हैं रिगार्डिंग हार्ट एंड हार्ट इश्यूज. Okay. So the first question is, if I don't have chest pain, it's not a heart problem. It's a myth. Okay. Lean people don't get heart diseases. It's a myth. Heart attack happens suddenly without warning. It's a myth. It's a myth. Taking medicine like statins can prevent heart attack. Yes. It's a Okay. fact. Okay. Ghee is bad for heart. Myth. Okay. Coughing can prevent cardiac attack. Myth. It was actually one of those most googled questions, by the way. ये मेरा है इस पे. Okay, okay. Heart disease runs in my family, so I can't avoid it. Because you don't run, that is why. Very good answer, actually. That brings me to the other section, which is called the rapid fire. Okay. So you have to answer quickly for these. First one is one test after 30 for your heart. Lipid profile. Okay. One food to avoid to protect your heart. Sugars. One food or ritual that you swear by for your healthy heart. Almonds. Okay. Worst habit for your heart. Smoking. Biggest frustration as a cardiologist. People think that younger and lean population or younger generation think that they are physically active, they will not get the heart attack. This is basically a very frustrating thing which we are facing. डॉक्टर साहब मैं तो यंग हूँ, मैं रोज जिम करता हूँ, तो हार्ट अटैक तो हो ही नहीं सकता. And my last question to you is that I've seen that you're making so much knowledgeable content on social media. What is your vision for the future? What impact do you want to create in your field? I think you've already done so much, but what is your vision ahead of this? Just to motivate about the lifestyle. I just want to become a lifestyle educator for the country. Wow, I think which is a very rare combination when it comes to doctors. Yeah. Thank you so much, Dr. Bhamri. I think it was my pleasure for having you. I think I really thoroughly enjoyed and understood so much from you. Thank you so much for coming. Thank you, Namya, for giving me this opportunity. Thank you. But seriously, sir, lovely to have you. I mean, I think with this podcast, I'm hoping that we can call you again with maybe a specific topic. Thank you.